I want us to go and look at the Word of God this morning. और इस सुबह हम प्रभु के वचन की ओर देखेंगे It's my favorite topic on the glory of God. और ये मेरा बहुत ही मनपसंद जो विषय है प्रभु की महिमा। It comes from Exodus 24, निर्गमन 24 verse 12. निर्गमन 24वां अध्याय 12वां वचन। And the Lord said unto Moses, Come up to me into the mount and be there, and I will give you tables of stone and a law and commandments which I have written, that thou may teach them. तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वह रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। And Moses rose up, तब मूसा यहोशू and his minister Joshua and Moses went up into the mount of God. तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। And he said unto the elders, तब फिर उसने वहाँ के जो Tarry ye here for us until we come again unto you, and behold, Aaron and Hur are with you. If any man have any matters to do, let him come unto them. कि जब तक हम तुम्हारे पास न फिरे आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोते रहो, और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, तो यदि किसी को मुकाम हो तो उन्हीं के पास जाए। And Moses went up into the mount, and a cloud covered the mount. तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। And the glory of the Lord abode upon Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And the 7th day he called unto Moses out of the midst of the cloud. तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के नीचे में से पुकारा। And look at verse 17. And the sight of the glory of the Lord was like devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel. और इज़राइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। And Moses went into the midst of the cloud and got him up into the mount, and Moses was in the mount 40 days and 40 nights. तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। The greatest need of the church is the glory of God. और जो कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत है वो है परमेश्वर की महिमा। What is the glory of God? परमेश्वर की महिमा क्या है? Let me define glory. और इस महिमा का मैं उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। The glory of God प्रभु की जो महिमा है, is the character of God, ये परमेश्वर का वो चरित्र है, the nature of God, परमेश्वर के स्वभाव, the personality of God, परमेश्वर की जो प्रतिमा है, all combined together, और ये सारा जो एक साथ expressing itself, और खुद का ही वो खुद के बारे में जो संदर्भ देते हैं, all at the same time. सब कुछ एक ही समय पर। The glory of God प्रभु की जो महिमा है, is the very essence of who God is. और वही वो बताता है कि प्रभु खुद कौन है। When the glory of God shows up, जब प्रभु की महिमा उतर आती है, there's a tangible manifestations और वहाँ पे प्रगटीकरण भी होता है of the very essence of who God is. कि वहाँ पर कि प्रभु परमेश्वर खुद क्या है। When the glory of God comes, जो प्रभु की महिमा उतरती है, there is unspeakable joy. और वहाँ पर जो वर्णन न कर पाए उस तरह का आनंद होता है, There is unspeakable peace. और जो वर्णन न कर पाए उस तरह की शांति है। And in the glory of God, और उस परमेश्वर की महिमा में there is mighty power. और वहाँ महान सामर्थ्य है, Because the glory क्योंकि जो महिमा है is the very nature. कि वो प्रभु का खुद एक स्वभाव है, It is God Himself कि वो प्रभु खुद है in His totality, और पूर्णता में, manifesting Himself. और खुद का प्रकटीकरण देते हुए। I've been in a service where the glory comes, और मैं वो प्रभु की महिमा की खोज में हूँ, and people in the seats are getting drunk in the spirit, और प्रभु जो उस महिमा में वो खोते जा रहे हैं, and people are drunk and they are laughing in the spirit.
और प्रभु जो लोग हैं उसे वो पीते जा रहे हैं और वो उनके लिए प्यासे हैं And there are miracles happening. और चमत्कार हो रहे हैं। The glory of God is the glory of the I am. और जो परमेश्वर की महिमा है वो जो खुद परमेश्वर है वही है। For so long, अब तक the church has operated कलीसिया चलती आ रही है in the realm of the anointing. अभिषेक के उस दौर में, But God is calling the church लेकिन प्रभु अभी कलीसिया को पुकार रहे हैं to come up higher कि और ऊपर के स्तर पर वो आए and operate in the glory realm. और एक महिमा के स्तर पर वो चले। There's a difference between the anointing and the glory. अभिषेक और जो महिमा है इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा अलग है। Anointing is the power of God flowing from the person of God. और जो अभिषेक है परमेश्वर का जो सामर्थ्य है जो एक व्यक्ति के द्वारा प्रकट होता है। And that's simply what anointing is, the power of God. और वही जो अभिषेक वो है प्रभु की सामर्थ्य है It is the grace of God और ये प्रभु का अनुग्रह है to complete the assignment in our lives. जो कुछ कार्य हमारे लिए रखा है उसे पूरा करना है। But the glory of God is the totality of who God is. लेकिन परमेश्वर की महिमा है जो परमेश्वर की पूर्णता है। In the glory there is mighty power flowing. और जो महिमा में एक महान सामर्थ का बहाव है। When you are in the anointing, जब आप अभिषेक में हो you work for God. आप प्रभु के लिए काम करते हैं, But when you're in the glory, God works for you. लेकिन जब आप महिमा में हो प्रभु आपके लिए काम करते हैं। Amen. आमीन। When you're in the anointing, जब आप अभिषेक में हैं it is God through man. और ये जो मनुष्य के द्वारा परमेश्वर, But when you're in the glory, जब आप महिमा में हो God does the rest. और जो प्रभु हर एक बात करता है। When you are in the anointing, जब आप अभिषेक में हो you are working. आप कार्य कर रहे हैं, But when you're in the glory, you're resting. जब आप महिमा में हो तो आप विश्राम में हो। In the glory of God, प्रभु की महिमा में there is no time. वहाँ पर वक्त नहीं है, There is no past. कोई भूतकाल नहीं है, There is no future. कोई भविष्य नहीं है, Everything is in the now. सब कुछ वर्तमान है। In the glory of God, प्रभु की महिमा में you go from now to now. हम अभी से अभी तक जाते हैं। In the glory of God, परमेश्वर की महिमा में you don't have to believe. आपको विश्वास नहीं करना It's पड़ता, already done. You just have to receive. क्योंकि वो पहले से कर चुका, आपको बस केवल ग्रहण करना है। And the glory of God is the presence of God और प्रभु की जो महिमा है प्रभु की उपस्थिति है, manifesting Himself. प्रकट करता है वो खुद परमेश्वर क्या है। In these scriptures, we see और इन हम वचनों में पढ़ते that the हैं glory of God कि प्रभु की जो महिमा है was like devouring fire. और जैसे एक महान एक अग्नि के समान है। The fire of God was the outward expression और जो अग्नि है परमेश्वर का एक बहाव, एक प्रगटीकरण है of God's very nature. कि प्रभु का स्वभाव जो है। Amen. आमीन। And the glory of God और प्रभु की जो महिमा है is the glory of the Holy Ghost. और वो पवित्र आत्मा की महिमा है And the Holy Ghost और पवित्र आत्मा is the glory of Jesus. और वो यीशु मसीह की महिमा है And Jesus is the glory of the Father. और यीशु मसीह अपने पिता की महिमा है। That's why we need the glory of God. इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा की जरूरत I है। have news for you. और आपके लिए एक समाचार है, The Holy Spirit पवित्र आत्मा is the Spirit of glory. और उस महिमा की आत्मा है वो, Jesus is the King of glory. और यीशु उस महिमा का राजा है। And the Heavenly Father is the Father of glory. और जो हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है उस महिमा का वो पिता है। The Holy Spirit, पवित्र आत्मा He's not a bird. ये कोई पक्षी नहीं है, He's not a wind. और कोई वो हवा नहीं है, He's not a smoke. कोई धूल नहीं है, He's not even fire. कोई वो अग्नि नहीं है, He's a person. वो एक व्यक्ति है। But when He manifests Himself, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से प्रकट करते हैं, it manifests like fire, एक अग्नि के समान प्रकट करते हैं, like a smoke. ऐसे कोई धुएं के समान, His presence comes like a wind. और उनकी उपस्थिति हवा के समान आती It है। is the expressions और ये जो अपने आप को दर्शाना है of the glory of God, कि प्रभु की महिमा का दर्शन, of the person of the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा जो व्यक्ति है उसका एक प्रगटीकरण। So here we see तो अब हम आगे देखेंगे। the Lord saying to Moses, और प्रभु ने यहोवा ने मूसा से कहा, Moses, Moses, मूसा मूसा, come up to me unto the mount और तू इस पर्वत के ऊपर चढ़ा and be there. और वहीं पर ठहर। And Moses, और मूसा, I'm going to give you
tables of stone. और वो जो पत्थर की जो लकड़ियों की जो पट्टियां हैं वो मैं तुम्हें दूंगा, I'll give you the law and the commandments और आज्ञाओं को मैं तुम्हें दूंगा which I have written, जो मैंने लिखी हुई है, that thou may teach them. ताकि तू उनको सिखाए। Today the Lord is calling you, आज प्रभु आपको बुला रहे हैं and He's saying to you today, और वो आपसे कह रहे हैं, my children, मेरे बच्चों, I know you by name. मैं आपको नाम से जानता I हूँ know your address. और मैं तुम्हारा पता जानता I know हूँ, where you live. मैं जानता हूँ तुम कहाँ रहते हो, And I'm calling you to come up to me. और मैं तुम्हें पुकारा हूँ कि तुम मेरे पास आओ, I'm calling you और मैं तुम्हें पुकार रहा to हूँ come to the mount कि तुम उस पर्वत पर चढ़ाओ to see me. ताकि मुझे देख पाओ, And I will teach you और मैं तुम्हें सिखाऊंगा when you come up to me जब तुम मेरे पास आओगे up higher. उस ऊंचे स्तर पर। So today तो आज the Holy Ghost is calling you and telling you, come up higher in me. और तो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि तुमको चढ़कर ऊपर आना है मेरे पास। He is calling you to change your address. तो वो आपको बता रहा है कि आपको अपना पता बदलना है। Your new address आपका नया पता is going to be the mount वो पर्वत होगा of intimacy. और उस निकटता का। And when you come to the Lord, जब आप प्रभु के निकट आते हैं up higher in Him, और एक ऊंचे स्तर पर उसके पास, only there will He give you केवल उधर ही वो आपको देंगे the instructions for your life. और आपके जीवन में आपको क्या करना है। Because many of you, क्योंकि कई लोग आप में you से are confused. आप बहुत ही गड़बड़ा गए हैं, You don't know what to do. आप नहीं जानते क्या करना है, You have questions. आपके सामने बहुत सवाल है You're looking for answers, और आप उत्तर खोज रहे हैं, but you won't find the answers लेकिन आपको उत्तर नहीं मिलेगा where you are. जहाँ आप हो। You will only find the answers आपको उत्तर वही मिलेगा up in the mount ऊपर उस पर्वत where पर the Lord is calling you. जहाँ पर परमेश्वर आपको पुकार रहे And हैं, over there He will give you और वहाँ ही वो आपको उत्तर देंगे। the instructions, और जो सूची है the direction. और जो दिशा है, And not only will He do that, केवल उतना ही नहीं करेंगे, He will also teach you. उतना ही नहीं आपको सिखाएंगे भी। It's time और ये वक्त है that we become supernatural students कि आप एक वो अलौकिक स्टूडेंट्स या फिर जो सीखने वाले बन जाए of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के। Amen. आमीन। So what does the mount represent? तो फिर जो पर्वत है वो क्या दर्शाता है? Mount represents a place of intimacy और जो पर्वत ये दर्शाता है कि आपके परमेश्वर के साथ की निकटता, with the Lord. परमेश्वर के साथ। And God is saying, और प्रभु कहते हैं you have to be willing to change और आपको वो इच्छा होना चाहिए कि आप बदले and transform और रूपांतर हो जाए and come to me. और मेरे पास आओ। So many of us हम में से कई लोग are very satisfied और बहुत हम तसल्ली पाते हैं with just coming to church on Sundays and having an experience. और केवल इतवार के दिन कलीसिया आना, वो अनुभव करना। But God is saying today, लेकिन प्रभु आज कहते हैं I want more of you. कि मुझे तुम्हारा और अधिक चाहिए I want to see passion burning in you. और मैं वो देखना चाहता हूँ वो जुनून से आप भरे हुए हैं I want to see fire burning in you. और मैं देखना चाहता हूँ वो अग्नि आप में प्रज्वलित रहनी I है want you to pursue me in intimacy. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे चलो उस निकटता में And I want you to come up higher now. और मैं चाहता हूँ कि तुम अब ऊपर चढ़कर उस पर्वत पर आए And God is calling you. और प्रभु पुकारते हैं It's time that we stop making excuses. और ये वक्त नहीं है कि आप बहाना बनाते बैठे To say, Lord, why can't I do what you're calling me to do? तो ये नहीं कहने कि प्रभु मैं क्यों कर वो जो तू करना The चाहता। Lord is saying, come up और higher. प्रभु कहते हैं ऊपर की स्तर पर आ जाओ Come up into the higher dimensions of glory. और जो उस महिमा के एक नए अद्भुत प्रकार में ऊपर तुम आ जाओ। I will reveal my presence to you. तो मैं मेरी उपस्थिति तुम्हें वहां प्रकट करूंगा। And one thing I have learned और एक बात मैंने सीखी है, when I'm flying in the air जब मैं आसमान में उड़ता हूं, in a plane, जब मैं प्लेन में हूँ I can see the entire city from a higher angle. तो मैं सारे शहर जो मैं उस एक ही नजरिए से मैं देखता हूँ, But when I am down on the ground, लेकिन जब मैं जमीन पे हूँ I see only that is around me. मैं उतना ही देख पाता जो मेरे इर्द गिर्द है। The reason you are confused, और वो कारण जो आप गड़बड़ा गए वो ये है, the reason you have so many questions, और कारण ये है कि आपके सामने is इतने because सवाल you're on है the ground level. क्योंकि आप अभी भी जमीन पर ही हो। But when you get to the mount, लेकिन जब आप पर्वत पर जाओगे you will see things from a higher place और तो आप एक बड़े ऊंची चोटी से आप देखते हैं in God. प्रभु में। Amen. आमीन। So who's ready
तो फिर कौन तैयार है to go higher ताकि उस ऊंचाई पर हो जाए in the Lord? प्रभु में? You must be willing लेकिन आपको वो इच्छा होना to जरूरी let है go of the past. ताकि आपका जो पिछला है वो सारा बीत जाए, You must be willing to let go of every religious mindset. और जो आपके सारी धार्मिकता है जो आपके पार्श्वभूमि से आपको वो छोड़ना है। You must be willing to let go of every offense, every hurt, every pain, everything, every bad experience. You must be willing to let go of everything and go high in God. हर एक बात आपको छोड़कर आगे बढ़ना है। जो बुरे अनुभव है, जो कड़वापन है, जो आपको चोट पहुंची है, जो दुख है, जो पीड़ा है, इन सारे बातों को छोड़कर आपको ऊपर जाना है। And it's time to obey the Lord. और वक्त है कि प्रभु की आज्ञा पालन हो। And verse 13, 13वां वचन, and Moses rose up. तब मूसा उठ गया। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? Delayed obedience is disobedience. और जो अगर आज्ञा पालन करने में देरी है तो उसे आज्ञा पालन नहीं कहा जाता। God is calling your name now and He's saying, come up higher. प्रभु आज आपका नाम पुकारे, आपको कह रहे हैं कि आप उच्च स्तर पर आए। We don't have time to make excuses. We don't have time to procrastinate. We don't have time to say, maybe tomorrow, maybe next week. No, God is calling you now. It's time to come up higher in Him now. We must respond. हमारे पास वक्त नहीं कि हम बहाना बनाए, आज नहीं, कल नहीं, 2-3 हफ्तों के बाद। जो प्रभु कह रहे उसकी प्रतिक्रिया हमें देनी है और हमको उसके पास जाना है। My God is calling my name and He's saying, son, He's saying, daughter, come up higher and I will teach you. I want to learn from the Lord. और मेरे पिता मुझे आवाज दे रहे, मेरी बेटी, मेरे बेटे ऊपर आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। And Moses rose up. और मूसा उठ गया। And Joshua rose up. और यहोशू उसके साथ चला। And they went up. और वो पर्वत के पर चढ़ गए। Going up means पर्वत ऊपर जाना मतलब not going backwards. पीछे जाना नहीं। Going up means ऊपर जाना मतलब not going sideways. कोई आजू बाजू में जाना नहीं है। Going up means ऊपर की ओर जाना मतलब going higher. कि और ऊंचे स्तर पर जाना। Amen. आमीन। We must respond हमको वो प्रतिक्रिया देना है to the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति का। Verse 14. 14वां वचन, And he said unto the elders, तो फिर बड़ों से उसने कहा, you stay here. तुम यहाँ प्रतीक्षा करो। And if any man has any problem, अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है go to the leaders. तो वो अगुवाओं के पास जाए। When God calls you जब प्रभु आपको पुकारते हैं and He tells you come up तो higher, आपको कहते कि आप ऊपर you चढ़े आओ। must obey the voice of the Lord. आपको परमेश्वर की आवाज का आज्ञा पालन करना है। When God is calling you higher, लेकिन प्रभु आपको उस स्थान पर बुला रहे हैं। there'll be some people who cannot go where you're going. उस तरह के लोग होंगे जो प्रभु की आवाज नहीं जानते हैं। It's time to say to all those people who said no to you, और उनको जो कुछ आपको आपके जीवन के लिए नहीं कह रहा, आपको उनसे कहना है, be silent. I am going because my Father is calling me. तुम शांत रहो क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरा पिता मुझे बुला रहा है। I'm telling you, when God calls you higher, there will be some people who will leave your life. और देखिए, मैं कहता हूँ जब प्रभु आपको ऊपर स्तर के बुलाएंगे तब कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको छोड़कर चले जाएंगे। When God is calling you higher, जब प्रभु आपको और ऊंचे स्तर पर बुलाते हैं things will become very uncomfortable. और जो सारी परिस्थिति बहुत आसान नहीं रहेगी। When God is calling you higher, जब प्रभु आपको और ऊपर स्तर पे बुलाते people हैं will not understand you वो शायद से लोग आपको समझ नहीं पाएंगे because not everyone can go where you are going. क्योंकि हर एक जन वहां नहीं जा सकता जहां आप जा The रहे हैं। mountaintop experience और वो जो पर्वत पर जाने का जो अनुभव could be a lonely walk, शायद से वो अकेलापन होगा, could be a hard walk, बहुत ही कठिनाई का मार्ग but होगा, nevertheless, लेकिन कभी भी वो किसी बात से कम don't नहीं look है। at the process. वो उस प्रक्रिया के पास मत देखे, Look at the mountaintop experience where you'll meet God. लेकिन उस पर्वत का अनुभव देखे जहां पर आप परमेश्वर का अनुभव करेंगे। Then verse 15. 15वां वचन, And Moses went up into the mount, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया and a cloud covered the mount. और बादल ने पर्वत को छा लिया। I love that. ये बहुत सही, बहुत अच्छा है। I love the mountaintop experience where I'm in so much intimate with the Lord. उस पर्वत का जो अनुभव जहां से मैं परमेश्वर के साथ इतने नजदीक रहता हूँ I'm so much in love with the और Lord. प्रभु से इतने मैं प्यार में हूँ I'm so hungry for the Lord. और प्रभु के लिए मैं इतना भूखा हूँ I'm so thirsty for the और Lord. प्रभु के लिए मैं इतना प्यासा हूँ The Lord, without you, I cannot do nothing. कि प्रभु तेरे अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। In that point of intimacy, और उस नजदीक के उस क्षण में in the point of desperation, और जहाँ आप व्याकुल हो,
the cloud of the Lord will cover us. जो परमेश्वर का बादल है आपको छू जाएगा, छा जाएगा। That cloud is the manifested presence of the Lord God Almighty. और जो बादल है परमेश्वर की प्रगटीकरण है उसकी उपस्थिति का। I'm telling you, when the presence of God comes very strong, I've been in services where the glory cloud shows up. और मैं उन सभाओं में हूँ था कि जहाँ परमेश्वर की जो महिमा है, जो महिमा के बादल छाए हुए थे। It has happened. और ऐसा हुआ And that's है। what happened to Moses. और वही हुआ मूसा के साथ। The glory cloud. जो महिमा का जो बादल छा गया God's tangible, weighty glory. और प्रभु की जो महान उपस्थिति वहां पर थी Heavily manifesting. और जो स्वर्ग की जो प्रगटीकरण। But I have news for you. लेकिन आपके लिए एक समाचार है, God can only fill the hungry. प्रभु केवल भूखों को खिला सकता है, God can only fill the thirsty. केवल प्यासों को वो पिला सकता है। The reason many people don't experience God और कई लोग जो प्रभु का अनुभव नहीं कर सकते, कारण ये है is because they don't come higher in God. क्योंकि वो परमेश्वर में और ऊंचे स्थान पर नहीं आते They're हैं, not hungry. वो भूखे नहीं है, They're not thirsty. वो प्यासे नहीं है प्रभु They're के not लिए। chasing after God. प्रभु के पीछे दौड़ नहीं They're लगा not रहे, pursuing God. प्रभु के पीछे नहीं चल रहे And they're हैं not desperate. और व्याकुल भी नहीं है। If you get desperate today, अगर आज वो व्याकुलता आप में है, the glory of God will come over your life. जो परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतर आएगी And your life will never be the same again. और आपका जीवन फिर से उसी तरह से नहीं रहेगा। One word from God प्रभु से एक शब्द will change your life forever. आपका जीवन हमेशा के लिए बदल You don't देगा। need a man's touch. आपको कोई मनुष्य के स्पर्श की जरूरत नहीं You है, need God's touch over your आपको life. परमेश्वर की स्पर्श की जरूरत है, You need God's fire in your life. परमेश्वर की अग्नि की जरूरत है, You need God's presence in your life. आपको परमेश्वर की उपस्थिति की And you जरूरत must है declare, I am hungry for you. और आपको घोषणा करना है, प्रभु मैं तेरे लिए भूखा हूँ, I'm thirsty for you. प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, God, I need an encounter with you. प्रभु मैं तेरे आमने सामने आना चाहता I हूँ want to know you for myself. और मेरे लिए मैं तुझे जानना चाहता So हूँ, I'm coming higher. इसलिए मैं ऊपर स्तर पे आ रहा I'm हूँ, chasing after you. मैं तेरे पीछे दौड़ लगा रहा हूँ। Lord God. प्रभु परमेश्वर, And here we see और हम यहाँ देखते हैं that the glory of the Lord कि प्रभु की जो महिमा है filled भर दिया Mount Sinai. और सिय्योन पर्वत को। And before I pray for you, I want to give you one more revelation. In verse 16, 16वें वचन में, and the glory of the Lord abode Mount Sinai, तब यहोवा के तेज ने सिय्योन पर्वत पर निवास किया and the cloud covered 6 days. और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा And 7th day he called Moses. और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। Some of you कुछ लोग आप में से have been praying, प्रार्थना कर रहे हैं, fasting, उपास कर रहे हैं, seeking the Lord, प्रभु को खोज रहे हैं and you have not seen your breakthrough. और अभी तक आपके जीवन में ब्रेक थ्रू It's नहीं because देखा you are in your 2nd day. क्योंकि आप अभी तक वो दूसरे दिन पर ही हो। Some of you are in your 3rd day. कई लोग तीसरे दिन में हैं, Some of you are in your 4th day. कई लोग चौथे दिन में हैं, Some of you are in your 5th day. कई लोग 5वें दिन में हैं। But if you do not give up now, लेकिन अगर आपने अब आज हार नहीं मानी I है, have news for you prophetically. तो आपके लिए एक समाचार है Your भविष्यवाणी के 7th अनुसार day is coming. कि आपका 7वां दिन आ रहा है And God will call you by your name. और प्रभु आपको आपके नाम से पुकारेगा And He will say, come out. और कहेगा कि तुम उठ आओ, This is your moment. क्योंकि यही तुम्हारा क्षण है। Before you get to the 7th day, और दूसरे दिन में जाने से पहले spiritually speaking, आत्मिक तौर पर अगर बात करें तो you must go through the 6 days. तो आप उस 6 दिन से आपको गुजरना है, You must go through the वो process. प्रक्रिया से आपको गुजरना है। You must wait on the Lord. आपको प्रभु के ऊपर इंतजार करना God है। is calling you to the mount प्रभु उस पर्वत पर आपको पुकार रहे हैं, for one reason, एक कारण है to kill your flesh. कि आपके देह को मार दिया जाए। I'm telling you, आपको बता रहे हैं there's only one way of righteousness. एक ही मार्ग है उस धार्मिकता We का must be holy. कि हम पवित्र होना है, We must live holy. हमको पवित्र जीना है, We must live righteously. हम उस नीतिमान We जीवन must को live जीना with है integrity. क्योंकि उस नीतिमत्वता से हमको जीना And है। God is calling you और प्रभु आपको बुला रहे to हैं come to Him ताकि तुम उसके पास आओ, to kill your flesh. ताकि तुम्हारे देह को मार दिया जाए। And I'm telling you, it will hurt. और मैं बता रहा हूँ कि इससे चोट I पहुंचेगी। tell the Lord, और मैं प्रभु से कहता हूँ, Lord, if there's any pride in me, प्रभु ये जो मैं हूँ मेरे में, kill it. वो जो मेरा देह है उसको मार दे। Lord, if there's any
thing in me that is not of you. और जब हम देखते हैं कि और तू जो है वो ज्यादा मुझ में आ जाए, Kill it. जो देह है उसको मार दे। Everything that in us that is not like God, हमारे में जो कुछ बातें जो परमेश्वर से नहीं है it must die. उसको मरना है। We must take our every flesh in us, और जो कुछ हमारे जो देह है उसको बाहर लाना है and we must sacrifice it on the altar और उसको वेदी पर उसका बलिदान करना of है, God's holy fire, परमेश्वर के महान पवित्र अग्नि के सामने। so that anything that is not like God must burn and die. तो जो कुछ परमेश्वर के समान नहीं है वो मरना है, उसका बलि जाना है। And some of you are in the fire, और सब कोई लोग उस अग्नि में है and you think it's the devil speaking. और आपको लग रहा है कि शैतान बात कर It's रहा the है doing of the devil. और ये सब शैतान की ओर की बातें No, it's the हैं। doing of the Lord. नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। He wants to kill anything in your life वो आपके जीवन में हर एक बात उसको मारना चाहता that is है not of God. जो परमेश्वर का नहीं है। Amen. आमीन। So it's time तो वक्त है to not fight the process. कि वो प्रक्रिया से हम नहीं झगड़े। It's time to go through the process ये वक्त है कि उस प्रक्रिया से हम गुजरे so that we can stand before the Lord ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह पाए, holy, पवित्र pure, और शुद्ध clean, और जो धोया हुआ transparent और जो ट्रांसपेरेंट है before the holy God. प्रभु, जो पवित्र परमेश्वर के सामने We must die. वो मरना है Our flesh must die और जो हमारा देह है उसे मरना है so that God can live in us. ताकि प्रभु हम में जी सके। This is a bottle. ये बॉटल है, It has to be emptied in order for you to fill it. अगर उसको भरना है तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा। You cannot fill this bottle as long as it's full. जब तक ये भरी हुई है आप उसको और अधिक नहीं भर सकते। As long as we are full of our own self. जब तक हम खुद से भरे हुए हैं, As long as we're full of anger. जब तक हम गुस्से से भरे हुए हैं, As long as we're full of offense. जब तक हम वो चोट पहुंची उससे भरे हुए As हैं, long as we're full of jealousy. जब तक हम जलन से भरे हुए As long as हैं, we're full of pride. जब तक हम घमंड से भरे हुए As long as हैं, we're full of self. जब तक हम स्वार्थपन से भरे हुए हैं, God cannot fill His presence in us. प्रभु उसकी उपस्थिति हमें नहीं भर We पाएगा। must be empty हमको खाली होना है so that He can fill us. ताकि वो हमें भर पाए। So when God calls us higher जब परमेश्वर हमें ऊपर की ओर बुलाते for हैं 6 days spiritually, 6 दिन आत्मिक तौर पर, He has to empty us out हमको उसको खाली करना पड़ता so है He can fill us with His cloud. ताकि उसके बादल से हमें भर दे, He can fill us with His glory. उसकी महिमा से हमें भर दे, He can fill us with His presence. उसकी उपस्थिति से हमें He भर can दे, fill us with His power. उसकी सामर्थ्य से हमें भर And दे। then on the 7th day, और फिर 7वें when दिन we are full of God, जब हम परमेश्वर से He will भरपूर call है, us out. वो हमें पुकार For कर His बाहर glory. बुलाएगा उसकी महिमा के लिए। Amen. आमीन। I hope you are getting the revelation. मैं सोचता हूँ कि आप समझ रहे इस प्रकटीकरण को। The key to the glory of God और जो कुंजी है परमेश्वर की महिमा के लिए, is learning to be empty so He can fill us. ये सीखना कि हमको किस तरह से खाली होना है ताकि वो हमें भर दे। So God says, come up तो higher प्रभु हमको कहते हैं कि ऊपर चढ़ा जाओ so you can decrease, ताकि आप खुद घट जाए that I may now increase. और वो हम में बढ़ जाए। And when God increases in you और जब परमेश्वर आप में बढ़ते and you're हैं hungry for Him, और प्रभु के लिए भूखे हैं, He will show you His glory. तो वो अपनी महिमा को आपको प्रकट His glory will करेगा come like fire. और उसकी महिमा अग्नि के समान Do उतर you want the आएगी। fire of God? क्या प्रभु की अग्नि की अब चाहिए If you want to touch India, और वो भारत को छू if you जाएगी, want to touch your community, आपके समाज को छू जाएगा। when you become a carrier of God's glory, जब आप परमेश्वर की महिमा लेकर चलने वाले बनेंगे devils will run from you. और जो शैतान है आपसे भागेगा। God will use you प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे and do signs and wonders and और miracles. चिन्ह चमत्कार करेंगे। You need the glory of God. आपको परमेश्वर की महिमा चाहिए The peace of God is in the glory. और जो परमेश्वर की जो शांति है परमेश्वर There's की महिमा joy में है and strength in the glory. और जो महिमा में आनंद और ताकत है। Your house needs the glory of और God. आपकी परिवार आपके घर को परमेश्वर की महिमा Your की life जरूरत है। needs the glory of आपके God. जीवन में महिमा की जरूरत है। Amen. आमीन। एक आखिरी बार, एक ऐसी अग्नि